Very good evening, all of you students. Beta, we have started with periodic table and we did very first trend. Which trend we did? Beta, atomic size. And in atomic size, what we studied? Beta, down the group atomic size, what happens? Beta, increases. Why? Because number of shell increases. Across the period, it decreases. Why? Because number of shell remains constant and effective nuclear charge increases. Nuclear charge means what? Beta, down the group, beta, can you see? Orbit are increasing. So the distance between the nucleus and the outermost shell is increasing. So atomic size down the group increases. Then across the period, beta, can you see the nuclear charge? Here, if you see, the nuclear charge is increasing. Can you see here? 11 Yes, sir. positive. Here it is 12. So 13. So outer electron will be pulled more closer and number of orbit remains same. But we have studied noble gas is slightly bigger. Can you see whenever we talk about the atomic size, it will go on decreasing, but noble gas will be slightly bigger than this halogen. Why? Due to interelectronic repulsion. Due to interelectronic Electronic repulsion. repulsion. Then beta we did in trends what we did beta. Do you remember beta? We did isoelectronic. What do you mean by isoelectronic? Hello dear. What is isoelectronic? Having the same number of electrons. Yes, in isoelectronic we have done. अच्छा basic thing what we studied beta. What was our basic thing? अरे यार बंद क्यों नहीं हो रहा है? बंद हो जा. अरे yeah. In isoelectronic what we studied beta. First thing what we studied. If it is an atom, okay, then we have cation and then we have anion. So normally anion will be always bigger than atom. Okay. And then we have studied who is the smaller cation. Suppose this is Cl, this is Cl plus 1 and this is Cl1 minus. So who will be bigger, beta? Come on, who will be bigger? Rhea. Anion. Anion will be bigger. Now one more thing you have to, one more thing we'll study in this, beta. As charge on anion increases, देखो एटम है anion में -1 है -2 है तो -2 will be bigger than -1. And for cation, what is the rule, beta? As charge on cation increases, size will go on decreasing. Clear? Yeah. Okay. Then we did isoelectronic. Isoelectronic means what, beta? We did 931 minus, then O2 minus, fluorine 1 minus, then neon, then Na1 plus, Mg2 plus, Al3 plus. All these, beta, if you see, they have protons were different. Protons इसमें atomic number is there proton 7, 8, 9, 10, 11, 12, right? 13. So they have different proton. Here it is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Clear? But electron is how much beta in all this? Same or not? Tell me. If anything has minus charge, you have to add it to the atomic number. So 7 plus 3. So it will be how much beta? 10. 8 plus 2. So 10. So all of them have same electron or not? Tell me, dear. And Yes, if sir. it is no charge, then it will be only 10. If it is plus, then we have to subtract that. So 11 minus 1. So 10. Here it will be 12 minus 2. So 10. And here it is 13 minus 3. So 10. So in these species are known as isoelectronic because they all have same electron. Can you see? They have same electron. Now, Yeah. if same electron is there, and I gave you an example. If you remember, this proton are my teacher and electron are my students. So students are same in all the class. 10 students are there. But here if you see teacher is increasing. So here more teacher means the control of the teacher will be more, na beta? So the Yeah. size will be the smallest. Whose size will be the biggest? Anion. And cation size will be the smallest. So this is big size and this will be the smallest. Understood, beta? Yes. Similarly, I can do this for this also, beta. Like, for this. Oxygen to हो गया बेटा, sorry. Sulfur 2 minus, chlorine 1 minus, argon. Then I can write here potassium 1 plus, calcium 2 plus. So who will be the biggest in this, dear? Sulfide, right? All these are also isoelectronic. Clear? Right? Hello, dear. Am I audible? Yes, sir. Ah. Then, beta, we studied about factors which affects what beta atomic size. We studied what all thing we studied beta factors affecting atomic size, right? Look, they say this thing number of orbits. Number of orbit increases, beta atomic size increases. It is directly proportional. Can you see? It is Yeah. inversely proportional to nuclear charge. बराबर है कि नहीं?
And Yeah. shielding बढ़ेगा. Shielding is what, beta? The outer electron will be shielded from the nucleus. By whom? By the inner electron. It is known as shielding effect. Shielding बढ़ेगा तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएगा. बिकॉज न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में what will come, बेटा? Inner electrons will come, right ना? Yeah. Hmm. Then what trend we studied in period atomic in periodic table down the group, beta? What happened in period? Across the period atomic size, what happens to atomic size? Decreases. Why? Yeah. Because the number of shell remains same, but the nuclear charge increases. So outermost electron is more strongly attracted, and nuclear radius decreases. In D block, beta, in S block and P block, decrease is very sharp. Remember, beta, because there is no screening effect. Screening effect Yeah. is constant. But in D block, if you see, the decrease is what? Comparatively less. And in F block, it is very, 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 very less across the period. Why? Because in D and F block, what will come into picture? Shielding effect. Shielding effect will come. Here in F block, so it will be very much, right now? Then we studied down the group. Down the group, what happened? Number of shell increases. Okay, atomic radius increase. Why? As we go down the group, beta, number of shell increases. Clear? Then we studied ionic radii. Ionic radii means it is cation or anion. Same, right now, beta? Then we Yes. studied this. As charge on cation increases, size decreases. देख बेटा ये size सबसे छोटा होगा. दिख रहा है ना? Clear? These are isoelectronic, बेटा. Can you see? सब में same electron है. Yes. देन अनायनिक में हम लोग ने किया था बेटा, राइट? अनायन का साइज इज ऑलवेज बिगर देन एटम. नाउ टुडे वी हैव टू डू बेटा, टिल हियर वी हैव डन. टुडे वी हैव टू डू व्हाट? आयनाइजेशन enthalpy. In lower standard you have studied ionization potential, but here what we are going to study? Ionization enthalpy. In our higher standard we call it as what, beta? Ionization. Potential. No, here we will call it as ionization enthalpy. Ionization. Enthalpy. So what is ionization enthalpy? I want to remove an electron. So can I remove electron directly, beta? Center में there is positive and here there is electron is negative. So there is a force of attraction, nuclear force of attraction or not? Tell me between these two. Yes. So if I want to remove, I have to break this force of attraction. So to break this, I have to supply some energy or not? Tell me. Yeah. And this energy is known as ionization enthalpy. What we call it as? Ionization enthalpy. अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी है. मुझे बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना. वेयर कैन आई रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और इट इज क्लोजर? टेल मी. Away. अवे ना, हाँ. तो यहाँ पे व्हाट आई रिक्वायर? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. हियर आई रिक्वायर व्हाट? इट इज क्लोजर ना बेटा? हेलो. Yeah. सो आई रिक्वायर मोर Yeah. आयनाइजेशन एंथैल्पी और नॉट? Hmm. सो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी? Decreases. हाँ. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज का व्हाट विल बी द रिलेशन बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट ना? Yes. Hey, by ionization size increases, ionization enthalpy decreases. Clear? Yes. Very good. Across the period अभी क्या होगा? मुझे बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पे से. Here it is away from the nucleus. Here it is closer to the nucleus. So what I'll have? Where it will have? हाँ, कहाँ पे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ? जहाँ पे साइज छोटा होगा या बड़ा? बड़ा. तो यहाँ पे there will be what? More or less? Here it will be less I. Here it will be more, na? So across the period, what happens to the ionization enthalpy below? अरे यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर Across है. the period, हाँ. it will increase. हाँ, very good. Clear है. Now what are the factors which will depend on ionization? So there are few other factors, beta, we are going to study. Look, first it will depend upon what? First, what is ionization? It is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. Clear? Yeah. ए, अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, सपोज मेरे पास एल्यूमिनियम था. एल्यूमिनियम में से मैंने, इफ आई रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, so I get Al1 plus. So this is known as first ionization enthalpy. अभी मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे किस में से निकालने का है? Al1 प्लस में से ना बेटा. सो इट विल बी व्हाट बेटा? Al2 प्लस, राइट ना बेटा? नाउ टेल मी, दिस इज एटम एंड दिस इज cation. सो दिस इज व्हाट बेटा? बिगर इन साइज. दिस इज स्मॉलर. Hmm. किस में से मैं आसानी से निकाल पाऊंगा? बिगर या स्मॉलर? Bigger. Bigger. हाँ, तो दिस आई विल बी लेस एंड दिस विल बी मोर. सो लुक, कैन यू सी? अगर मैंने और निकाला तो, इसमें से और एक निकाला तो बोलो.
So this will be what, beta? Ionization enthalpy 3 or not? Tell me. Yeah. This will be smallest, right, beta? So this will be even bigger or not? So between I1, I2 and I3, who is more always? I1, I2, I3 में कौन ज्यादा होगा? I3. Good. So what are the factor on which ionization depend, beta? Tell me. एटॉमिक साइज में क्या होगा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. साइज बढ़ेगा तो आई कम होगा कि नहीं? Yeah. तो डाउन द ग्रुप ऐसा ही होता था ना बेटा, ये बढ़ते जाता था तो आई कम होता जाता था. यहाँ पे क्या होता था? हाई, एंड हियर इट वाज लो. अक्रॉस द पीरियड बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम होता है कि नहीं, बोलो? Yeah. तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, आयनाइज, तो यहाँ पे अभी कहाँ से यहाँ पे क्या होगा? आई कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन हियर इजिली ना. इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. हियर इट इज क्लोजर ना बेटा. Yeah. So here it will be less IE and here it will be More. more. So tell me beta, across the period क्या होता है? Nuclear charge increases, I also increases. So I and nuclear charge is what beta? Directly proportional or not? Tell me. Yeah. अच्छा, शील्डिंग होगा तो क्या होगा, बोलो बेटा? शील्डिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन, Inversely. तो इट इज व्हाट बेटा? आई इज व्हाट बेटा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आई कम होगा बेटा. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे ना बेटा. Hmm. बट आई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा? आई जनरली, इन जनरल क्या होगा इन पीरियड बेटा? आई व्हाट हैपेंस, बोलो? लेफ्ट टू राइट. ए पीरियड में साइज क्या होगा? डिक्रीज Increases. होगा. तो आई इंक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. ग्रुप में क्या होगा, बोलो बेटा? ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होता है? अरे ऑर्बिट बढ़ता है ना Decreases. बेटा. हाँ, तो इट डिक्रीजेस. Why? Because the atomic size increases, nuclear charge decreases. Clear? Hmm. But there is one more factor on which the ionization potential depend. That is the fourth factor. And the fourth factor is what बेटा? अरे यार, वो कहाँ गया? लग गया. फोर्थ फैक्टर क्या है वो मैं बता देता हूँ. Fourth factor is what, your beta? Electronic configuration. It also depends on what? Configuration. It depends upon, yeah. Hmm. It also depends upon electronic configuration. So I'll explain this electronic configuration. Beta, you only tell me, beta, ionization enthalpy also depends on electronic configuration. IE, ionization enthalpy depends on electronic configuration. Configuration. अभी आप बोलोगे ये क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप का होता है बेटा. एक होता है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड. बेटा, वी हैव स्टडीड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. हाफ फिल्ड इज व्हाट बेटा? स्टेबल ना बेटा. हेलो डियर. Yes, sir. तो हाफ फील्ड क्या होगा बेटा? एस में तो कोई आएगा नहीं रूल. वाई? एस में देर इज नो रूल. वाई? बिकॉज देर इज ओनली वन बॉक्स ना. Hmm. एस में कोई रूल नहीं होता. पी में कितने डब्बे होते हैं बेटा? हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? Three. 3. तो पी में हाफ फील्ड कितना होगा? पी का Three कैपेसिटी है electrons. 6 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड कितना होगा? 3 होगा कि नहीं, बोलो? Yeah. तो जिसमें भी ये कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड होगा ना, दे विल बी मोर स्टेबल. डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोल बेटा? 10 electrons. 10. तो 10, तो हाफ फील्ड उसका स्टेबल होगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स. एंड 10 Hmm. ऑल्सो. बोथ आर स्टेबल. ओके. तो Yes, sir. एफ में कितना होता है? 14. तो इसमें भी हाफ फील्ड विल बी मोर स्टेबल और नॉट, एंड कंप्लीटली फील्ड? टेल मी. Yeah. तो बेटा जो स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है. तो बिना हाफ फील्ड में कौन कौन आएगा बेटा? P3, D5, F7. दे आर व्हाट? मोर Half स्टेबल. field. हाफ फील्ड मोर स्टेबल, देयरफॉर मोर IE. मोर I. आई. कंप्लीटली फील्ड क्या होगा, बोलो बेटा? P6. राइट ना बेटा? Yeah. H2, D10 एंड D.
14. More stable. Therefore, more I. Clear? Completely filled is also more stable. हाँ, completely filled is the most stable ना बेटा. They are the most stable. So the both sides are the same. Yeah. Okay. Hmm. Now, what exceptional cases we are going to study here that I'm going to tell you. Now, मेरे को बताओ बेटा. One more thing I want you to remember. It also एक MCQ आएगा बेटा. किसका I will be more? न्यूक्लियस के नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है बोलो बेटा. Which orbital is closer? S. Then we have SP, right ना बेटा? Yeah. SPD. SPDF. तभी मेरे को बता. Who is the closest to the nucleus? S. Second closest is S P. P Then D. Then F. तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तेरे लिए इजी हो जाएगा बोलो बेटा. F. एफ में से इजी हो जाएगा हाँ. तो ये लोग पूछेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर पूछेंगे तो किसका सबसे ज्यादा होगा बेटा. हियर इट विल बी मोर एंड हियर इट विल बी लेस. क्लियर. हाँ. व्हाई बिकॉज एस इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. हम्म. ना ये एग्जाम में जनरली अक्रॉस द पीरियड तेरा क्या होना चाहिए. आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए कि नहीं बोलो बेटा. हाँ. तो लाइक अभी मैं तेरे को बता देता हूँ. यहाँ पे आ जाते हैं बता देते हैं. पेपर मिला कि नहीं. केम का अभी हाँ. तक तो नहीं मिला, कल मिलेगा शायद से. अच्छा. ओके. एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड कौन होता है बोलो बेटा. ओके एक आपको गिव रीजन आएगा ऐसा बेटा. ये देखो. तो इसी में मैं बताता हूँ. पीरियड सेकंड पीरियड में कौन होता है बेटा. सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन. किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए. अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है कि नहीं बोलो. तो या सबसे ज्यादा किसका होना नियॉन. चाहिए. नियॉन का नियॉन. मैक्सिमम होगा कि नहीं. हम्म. इसका मिनिमम होगा कि नहीं बोल बेटा. या. ओके. अब बेटा लेकिन है ना यहाँ पर मैं जब करता हूँ ना तो इसका ना बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है. ये एक्सेप्शन हो गया. नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है. तो ऐसा आपको गिव रीजन बोलेगा वाई. वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन. वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन. सोच सकती है कुछ. नो. No, is it related to like the configuration? या इट इज रिलेटेड टू कॉन्फिगरेशन. लुक हियर. नाउ इफ आई राइट बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा. Beryllium atomic number is how much? Beryllium. Look, I have written here. Beryllium. Atomic number is 4. So what is the electronic configuration? 1s2, 2s2. Can you see this? Yeah. Acha. Boron is how much atomic number? 5. Right? So 1s2, 2s2, and 2p1. Can you see this? Hmm. Hey, but this is what completely filled or not? 2s2. मोर स्टेबल देयरफॉर मोर आई. इज Yeah. दिस कंप्लीटली फिल्ड. नो ना बेटा. देखना 2p में एक इलेक्ट्रॉन है. ये कंप्लीटली फिल्ड है क्या. लेस नहीं. स्टेबल देयरफॉर लेस आई. अंडरस्टूड. हम्म. तो ये वाला मैंने कर दिया. दिखाई दे रहा है. अभी क्या करने का. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है. 7. 7. So 7 if it is there. So what I'll get 1s 2 2s 2 and 2p 3. 3. Can you see. So 1 2 3. Hey, this p is half filled or not. Tell me. Yeah. Therefore more stable, therefore more I. Hey, what about oxygen? Atomic number is how much? 8. 8. So what it is? 1s, 2, 2s, 2, and 2p, 4. It is 2p completely filled? Hmm. Incomplete, na beta? No. Therefore less stable. So less Hmm. I. Understood?
Yeah. सिमिलरली दिस ट्रेंड इन पीरियड 3 ऑल्सो विल नोटिस। सोडियम से देखो, इसका मिनिमम है, इसका मैक्सिमम है, बट ये दो जगह पे दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का, और फास्फोरस एंड सल्फर में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। व्हाट विल बी द रीजन? सेम रीजन बेटा। अरे बेबी, Okay. अरे दिस इज बिलो दिस ना, सो इंस्टेड ऑफ 2s2 दिस विल बी व्हाट? 3s2, हाँ हाँ, understood. and this will be 3p3. Here it was 2p3 na. Look, I'll show Hmm. you here where it is. Here, beryllium we did. Magnesium atomic number is Ahmad 12. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Completely filled, more stable, more I. Aluminium is 13. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Incompletely filled, less stable, so less I. राइट? तो ये वाला समझ में आ गया। Hmm. अब इसका करेंगे, फास्फोरस और सल्फर का। Phosphorus atomic number is how much? 15. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Half filled or not? Tell me. More stable, Yeah. more I. Sulfur is 16. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Incompletely filled. So less stable. So less I. ये Hmm. समझा क्या बोलो ना डियर? Yes, sir. हम्म। तो ये देखिए ट्रेंड्स था बेटा। देखिए पीरियड, ये देखिए ग्राफ देख रहा है बेटा, लिथियम का सबसे कम है, यानी से लिथियम इज द लोएस्ट हियर। Yeah. नियॉन मैक्सिमम है, लेकिन देख ना बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन का कम क्यों हो गया, ये दिख रहा है। नाइट्रोजन और Hmm. ऑक्सीजन में ये कम हुआ ना। सिमिलरली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में देखना, फास्फोरस, और ये ग्राफ ऐसा क्यों बेंड हुआ, वो समझा? Yes, sir. बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सो वी हैव डन इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन लोअर स्टैंडर्ड ये स्टडीड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना बेटा। Hmm. अरे आयनाइजेशन में हम लोग क्या करते थे बेटा? आयनाइजेशन में हम लोग क्या करते थे बेटा, बोलो? Electron remove. रिमूव करते थे। तो ये बन जाता था, यहाँ पे जो एनर्जी होती थी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और कटायन बन जाता। यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? ऐड किया ना तो Anion. उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? Electron gain enthalpy. हाँ, लोअर स्टैंडर्ड में हम लोग यूज्ड टू कॉल इट एज व्हाट? Electron affinity. Now we'll call it as electron gain enthalpy. We write it as this way. We write delta H Eg. For ionization enthalpy, what we write? Delta H IE. Okay. Hmm. A chlorine atomic number is 17. Acha, this IE was what, beta? IE was what we used to supply, na beta? So this was which process? Endothermic. This was, Endothermic. so endothermic is delta H is always positive. Endothermic. We have to supply energy. Here it is what, beta? 287. It is gaining electron, and now it is becoming 288. Who is unstable between these two? Tell me better. What? Who is unstable? The atom. This is Atom. unstable. This is stable. Hey beta, the one who is unstable, it has high energy or not? Tell me. Yeah. And this will have low energy, right? So what would have happened in this process? सपोज इसका एनर्जी 100 था, 100 एनर्जी, तो इसका कितना हो गया बोलो बेटा? 80 हो जाएगा कि नहीं बोलो? हाँ. तो मतलब ये प्रोसेस में क्या हुआ? एनर्जी उसने क्या किया? लूज किया या गेन किया? Lose क्या? वेरी Lose. गुड। सो इट इज व्हाट बेटा? एक्सोथर्मिक। Exothermic. Exothermic. So delta H will be what? Negative. But there are two cases where it can be endothermic that I'll teach you later. Clear? So now have you Hmm. understood why when an atom gains an electron to form an anion is known as electron gain enthalpy. So energy is released. Why energy is released? Have you understood? Yeah. Because it will become stable. It will become stable. Clear? Yes, sir. So we are studying what? Ionization enthalpy. Sorry, electron gain enthalpy. So we'll study this. Ionization enthalpy we did. We did these exceptional cases or not? Tell me, beta. Right? Yeah. Group wala we did. Now we are doing electron gain enthalpy. We used to call it as electron affinity.
When an electron is added to neutral gaseous atom to convert into negative ion, the enthalpy change accompanying the process is called electron gain enthalpy. Can you see? इसने gain करके negative बन गया. Yeah. बोलो ना. अच्छा बेटा, अभी पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? बोलो. इन पीरियड एटॉमिक साइज गोज ऑन. Decreasing. हाँ. तो who can accept electron easily from outside? The one whose size is big. Outside electron we are accepting, हाँ बेटा. तो कौन इलेक्ट्रॉन Hmm. सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के? यहाँ पे नजदीक होगा या यहाँ पर? छोटे लेफ्ट. वाले में. हाँ, छोटे वाले में. तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना बेटा. तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी व्हाट? मोर ना. More. Yeah. हियर डेल्टा एच ईजी इज मोर. हियर इट इज लेस. सो अक्रॉस द पीरियड इट व्हाट? इंक्रीजेस. राइट ना. Hmm. डाउन द ग्रुप क्या होएगा? अभी बाहर से मुझे Decrease. हाँ, डिक्रीज. वेरी गुड. हियर इट इज क्लोजर एंड हियर इट इज फार अवे ना. बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. बराबर है. Hmm. So in the period it increases. In the group it decreases. Clear? Yes, sir. Right? Okay. अब बेटा ना, मैं तेरे को ना दो जगह पर है ना, मैंने बोला था ना, this can also be what बेटा? In two places. It can be what? Electron gain enthalpy is generally what बेटा? Generally what? It is exothermic. Exothermic means Heat negative. is lost. हाँ, delta H will be negative. But can be endothermic. But can be Endothermic. एंडोथर्मिक किसके लिए होगा? फर्स्ट तो किसके लिए होगा? फॉर नोबल गैसेस. फॉर Noble gases. सेकेंड इज फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? Second electron gain enthalpy. ऐसा क्यों? ये नोबल गैस इज ऑलरेडी स्टेबल ना बेटा. Yeah. हाँ, ये जो स्टेबल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं ना, वो ऑलरेडी स्टेबल है. तो तुझे ये बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड करना है तो तुझे उसको जबरदस्ती अंदर पुश करना पड़ेगा. क्लियर है? Hmm. Yeah. फोर्सफुली will have to. So forcefully means you are supplying energy. Now have you understood? तो इसके लिए बेटा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल्टा जी क्या होता है? बोलो बेटा. नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया कि नहीं? अच्छा Yeah. बेटा, ऑक्सीजन था. मैंने ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन जाएगा? O1 माइनस बनेगा कि नहीं? Hmm. तो यहाँ पे मेरा डेल्टा ई जी क्या था? 1. ये तेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा. अब O1 माइनस है, उसके अंदर वापस तुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. तो वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो Minus. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब मेरे को बता, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो मुझे ना वो इलेक्ट्रॉन को अंदर जबरदस्ती डालना पड़ेगा. क्यों रे? फोर्सफुली आई हैव टू इंट्रोड्यूस इनटू इट. व्हाई? थिंक बाबा. ओ बेबी, सो गई क्या? No, no. हाँ बेटा, ये इस पे कोई चार्ज था? नहीं था. इस पे क्या चार्ज आ गया? 1 माइनस. अभी देख, इस पे नेगेटिव चार्ज है. तू नेगेटिव के अंदर नेगेटिव डालेगी तो क्या करे? नेगेटिव नेगेटिव के अंदर आने देगा क्या? No. रिपल्शन होगा ना. तो मुझे वो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अंदर डालना पड़ेगा. अब समझिए क्या बेटा? जबरदस्ती डालना पड़ेगा मतलब Yes, डेल्टा sir. एच तेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. एंडोथर्मिक. क्लियर है? Hmm. हेलो. राइट. ओके. Yes, sir. इसमें एक ना इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे. ठीक है. चलो, ये वाला, ये एक्सेप्शन. तो बेटा नॉर्मली क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ए ऊपर से नीचे जाएगी तो क्या होगा? बोलो बेटा. ऊपर से नीचे जाएगा तो डिक्रीज होगा कि नहीं? Hmm. और लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इंक्रीज होगा कि नहीं? बोलो. Yeah. या. आ जाओ. ये चलो देखिए, वैल्यूज मैंने दिया बेटा. देख रहा है कि नहीं? यहाँ पे वैल्यूज दिया मैंने. किसका दिया बोलो? डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये देख, डाउन द ग्रुप. आई एम गोइंग हियर डाउन द ग्रुप. कैन यू सी दिस? Hmm. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है कि नहीं? बोलो बेटा.
So what is happening to the value? It is decreasing or not? Tell me. Yeah. Don't see this negative. Why? अच्छा, why it is negative here, beta? Have you understood? Because it is always exothermic, ना बेटा? Yeah. तो बेटा हम लोग खाली ना मैग्नीट्यूड को देखने का, साइन को नहीं देखने का। तो देख वैल्यूज कम हो रहा है ना बेटा, दिख रहा है? Hmm. हम्म। फिर यहाँ पे तो देख बेटा, नोबल गैस में, ये नोबल गैस है बेटा। अब अच्छा, हेलोजन में भी देखना है, नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं, सब में नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं। इन जनरल देख, ऊपर का कितना था 328, इसका 270, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, बोल। Yeah. लेकिन नोबल गैस में सब जगह पे पॉजिटिव क्यों आया, बोल अभी मेरे को। Because we are forcefully putting the electron in हाँ, there. बिकॉज इट इज So ऑलरेडी स्टेबल। अब समझ में आ गया। अच्छा, अभी तेरे को पता है बेटा, डाउन द yeah. ग्रुप कम होना चाहिए था ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना। पर Hmm. ये दोनों का वैल्यू देख बेटा, ये 328 है और इसका कितना है, 349। 349. ओ माय गॉड, तो ऐसा क्यों हुआ? बाकी तो देखना कम हो रहा है, ये देखना 328, 325, इन जनरल कम हो रहा है, लेकिन क्लोरीन Yeah. का क्या हो रहा है, ज्यादा। हम क्या सोच रहे थे, ऐसा Hmm. होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। हम लोग ये सोच रहे थे ना बेटा, ऐसा फ्लोरीन क्लो ऐसा होना चाहिए था ना बेटा, बट ऐसा Yeah. होता है। क्लोरीन इज द, अच्छा एमसीक्यू में पूछेगा, हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, तो क्लोरीन किसका है सबसे ज्यादा, बोलो। क्लोरीन, देन फ्लोरीन। अभी आपको ना Fluorine. ये गिव रीजन भी पूछेगा, बाय। बोलो ना बेटा, बाय। अभी देख बेटा, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ये फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होगा कि नहीं, बोल बेटा। दो ही ऑर्बिट है ना, इसके अंदर 9 Yeah. इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। क्लोरीन का साइज बड़ा है कि नहीं? हाँ. हाँ, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे क्या करना है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर डालना है। इमेजिन मेरे को ना बाहर से ये वाला इलेक्ट्रॉन डालने का था, और ऐसे मैंने एज्यूम किया इसका एनर्जी कितना है, बोलो बेटा 10 है। तो बेटा अभी मैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालूंगा। अरे तो इतना ऑलरेडी स्मॉल प्लेस इज देयर, इसमें ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है कि नहीं, बोल। और Hmm. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा आसानी से? अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल No. करेगा कि नहीं, राइट ना, मेरे दे विल रिपल। सो दे Yeah. विल अलाउ दिस टू एंटर, Hmm. बट फिर भी ये अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के लिए इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो बाहर वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। एंड दिस एनर्जी रिलीज इज हाउ मच बेटा, 2। सिर्फ मैं वेग वैल्यू बोल रहा हूँ। वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज फ्लोरीन का साइज 2p का, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 2p, साइज इज स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। क्लोरीन में Hmm. बेटा इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है लेकिन साइज भी बड़ा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली देखना, ये काफी बड़ा है ना बेटा। तो हाँ. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंपैरेटिवली लेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट, कंपैरेटिवली। Less. कंपैरेटिवली वर्ड की यूज किया मैंने, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट विद फ्लोरीन। Hmm. तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये लोग रिपल करेंगे, पर उतना रिपल नहीं करेंगे। तो इसके अंदर आने के लिए उसको, उसका एनर्जी 10 था, तो अंदर जाने के लिए उसने 6 का यूज किया, तो बाहर कितना एनर्जी रिलीज करेगा वो, बाहर कितना रिलीज करेगा, 4। 4. एंड दिस एनर्जी रिलीज इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, तो यहाँ पे 2 ही रिलीज किया है, यहाँ पे कितना रिलीज किया है, 4। 4. तो दिस इज मोर ना बेटा। Hmm. अच्छा मैं तेरे को सिंपल से बताऊं क्या, दो बस है बेटा, दिस इज क्राउडेड बस, फ्लोरीन इज लाइक क्राउडेड बस, क्लोरीन इज व्हाट, क्राउड बस है बट लेस क्राउडेड। अगर बेटा मैं तेरे को बोलूंगा कौन से बस में तू आसानी से जाएगी, क्राउडेड या लेस क्राउडेड? Less crowded. हाँ, अब समझ में आ गया, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बेटा। अब ये Hmm. समझा ये वैल्यू ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर। Yeah. सिमिलरली बेटा ग्रुप 16 में भी बेटा देख, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे स्मॉलेस्ट है ना, सेम रीजन यू विल राइट। Hmm. क्लियर? Yeah. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये देखो बेटा, और ये क्लोरीन का क्यों ज्यादा था वो समझा। Hmm. अब हम लोग को क्या पढ़ देगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस। Tendency of an atom to attract electrons. हाँ, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड, इन इट्स। Compound. तो बेटा जैसे टग ऑफ वॉर होता है कि नहीं, टग ऑफ वॉर का गेम। देख बेटा, मैंने तेरे को बोला था ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस के लिए, नोबल गैस के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो पॉजिटिव।
समझा ना? Hmm. Yeah. बिकॉज यहाँ पे देखना, मैं फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड करूंगा, दिख रहा है? हेलो। Hmm. और सेकेंड इलेक्ट्रॉन Yes, में sir. देख, पहले वाले में तो एक्सो होगा, बट सेकेंड वाले में नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपल ना बेटा। क्लियर? Yeah. Hmm. नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा, suppose we are doing a tug of war game. There is a tug of war between these two persons. There is a knot here. This is our x and this is y. Now suppose there is a knot here. This knot will, where will this knot shift? Toward x or towards y? Why? Hmm. Why? बट है ना, x इज नॉट लीविंग इट, हाँ बेटा, याद रखना। x छोड़ने नहीं वाला है, उसको पकड़ के रख रहा है। तो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम टू विथ होम बेटा? Why? तो इलेक्ट्रॉन हैज नॉट कंप्लीटली शिफ्टेड, पार्शियली शिफ्टेड, तो इट विल डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उससे एक्स से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, वाई के नजदीक आया कि नहीं, बोल बेटा? Hmm. तो दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स Itself. itself in its compound. अभी बेटा ये भी एक्स एक 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 एक्स इज वन पर्सन, वाई इज अनदर पर्सन, राइट ना बेटा? तो बेटा, Hmm. इन पीरियोडिक टेबल देर आर ऑल द एलिमेंट्स आर देयर, सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो बेटा दिस इज इंडिविजुअल इनबिल्ड प्रॉपर्टी और नॉट? अगर बेटा Yeah. तेरा तेरा और मेरा टग ऑफ वॉर होगा, तो तेरा खुद का पावर सेम होगा कि नहीं? तेरा Hmm. पावर एक कांस्टेंट होगा, मेरा पावर भी एक कांस्टेंट होगा कि नहीं, बोल? Yeah. ओके, जोया विल बी देयर, तो जोया का भी उसका खुद का एक पावर होगा कि नहीं, बोल बेटा? तो सबका अलग अलग Hmm. होगा ना बेटा, राइट? Yes, तो sir. साइंटिस्ट लोग ने क्या किया पता है क्या, सब पीरियोडिक टेबल के सब, ओके, एक साइंटिस्ट था पॉलिंग स्केल, वी फॉलो विच स्केल? पॉलिंग स्केल। उसने ना हर एक एलिमेंट का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढा, क्या ढूंढा? Electronegativity. हाँ, और सबका वैल्यू लिख दिया, और उसके उसके वैल्यू में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल वाज फ्लोरीन। इसका पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ रहा था? 4। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाज ऑक्सीजन। फोन कॉल याद रख तू, फोन कॉल। ठीक है, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। क्लियर? हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? Fluorine. अच्छा, अभी तेरे को पता है ये सब नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे दिखाई देते हैं? राइट में दिखाई देते हैं कि नहीं, बोल बेटा? तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बराबर है कि नहीं? Yeah. अच्छा, कॉमन सेंस लगा, इलेक्ट्रॉन कब आसानी से वो पुल करे पे आएगा? जब उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा ना, छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से आ जाएगा उसके पास में, देखना। और यहाँ Hmm. पे इलेक्ट्रॉन दूर है ना इससे, राइट? डाउन द Yeah. ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट करेगा या ये वाला करेगा? ऊपर वाला ना। तो यहाँ Yeah. पे इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस। इज दिस क्लियर? Hmm. हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल? फ्लोरीन। तो फैक्टर्स देख बेटा, Hmm. एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल एंड अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड। There were many scale for measuring electronegativity. Pauling scale, Millikan scale, Jaffa scale, Alfred Rosho scale. बट हम लोग कौन सा फॉलो करता है? पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग। ओके, पॉलिंग में बेटा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 4 है बेटा, मैक्सिमम। तो बेटा अभी तेरे को पता चल गया एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा कि नहीं? तो व्हाट आर द फैक्टर्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? टेल मी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक Yeah. रेडियस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि नहीं? अच्छा, Huh. शील्डिंग बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा कि नहीं? Huh. हम्म। तो बस बेटा यही दिया है बेटा, देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस।
क्यों? अक्रॉस द पीरियड बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, therefore टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. बरोबर है कि नहीं? हम्म. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. क्लियर? या. ओ, हो गया ये तुम्हारा. इजी है कि नहीं बोलो? हम्म. अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? वैलेंसी. क्या करेंगे? बैलेंसिंग. वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे. या मेटालिक कैरेक्टर. व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर बेटा? मेटालिक कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. हु कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजिली? बोलो. हु? मेटल्स. हाँ वो तो है, लेकिन हु कैन डोनेट इट इजिली? द बिगर वन और द स्मॉलर वन? बिगर वन. वेरी गुड. सो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर. अरे कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ऊपर वाला या नीचे? इंक्रीजेस. नीचे वाला ना? हाँ. हाँ. तो हु विल बी मेटेलिक कैरेक्टर? किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? नीचे वाले का. हम्म. तो डाउन मोर मेटेलिक. दिस विल बी लेस मेटेलिक. हम्म. अच्छा, डाउन द ग्रुप बेटा है ना, टेंडेंसी हु कैन रिड्यूस, हु कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली? द लोअर वन ना. तो इसको कहते हैं बेटा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सो हु हैज मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर? लोअर वन. ऊपर वन. डाउन द ग्रुप या. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस. अक्रॉस द पीरियड क्या होगा बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. बराबर है ना? बिकॉज टेंडेंसी वो गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन, एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग पावर. सो अक्रॉस द पीरियड ऑक्सीडाइजिंग पावर. इंक्रीजेस. Down the group decreases. Down the group reducing power increases. Across the period decreases. Down the group metallic character increases. Across the period decreases. Down the group non-metallic character डिक्रीजेस. decreases. Across the period increases. इंक्रीजेस. अभी हम लोग को क्या करने का है? वैलेंसी. अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम. राइट ना? हम्म. ये देख भैया, भैया यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई हैव रिटन एवरीथिंग. कैन यू सी? सो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सबके? बोलो बेटा. वन 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 ना बेटा? राइट ना? हम्म. सो वैलेंसी कितना होगा या. इनका सबका? वन ही होगा कि नहीं? हम्म. ये लोग कितना है बाहर? टू इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल लूज टू इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंसी इज टू. हियर इट इज थ्री, सो इट विल लूज थ्री. हियर इट इज सेवन, सो इट विल गेन वन और नॉट? टेल मी. या. So valence is minus 1. Here it will gain 2, na? So minus 2. Here it will gain 3, so minus 3. Here it will share. So across the period, what happens to the valency? It increases up to 4 and then it decreases up to 0. हम्म. बट डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या रहेगा? सबका वन 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 ही होगा ना? और इसका भी वन 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 वन, इसका भी क्या है? टू, इसका भी टू. तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम. इज दिस क्लियर? या. हेलो. अच्छा, डिड वी डिड रिडॉक्स? द चैप्टर. या. रिडॉक्स रिएक्शन वी डिड ना? या. ओके. तो बेटा ये समझ में आ गया. पीरियोडिक टेबल में और कुछ दिया है तुम्हारे बुक में? देखो. या. व्हाट इज, यू हैव योर टेक्स्ट बुक विथ यू? डू यू? या. हाँ, तो वी डिड ऑल द थिंग और नॉट? टेल मी. हम्म. खाली क्या बचा रहेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट बचा रहेगा. ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव ऑलरेडी डन ना बेटा? वेर वी हैव डन ऑक्सीडेशन नंबर? रॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन. हाँ. तो ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन राइट ना बेटा? लाइक जनरली सोडियम का कितना होता है? वन प्लस. राइट ना? मैग्नीशियम का टू प्लस. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. हम्म. ऑक्सीजन का क्या क्या हम लोग ने? हाइड्रोजन कैन बी प्लस वन और माइनस वन ऑल्सो. राइट ना बेटा? या. प्लस वन को हाइड्रोजन बोलते थे, माइनस वन को हाइड्राइड. ऑक्सीजन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का क्या क्या हो सकता था? ऑक्साइड, देन पेरोक्साइड. रिमेंबर, ऐसा दो ऑक्सीजन. पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन पे माइनस वन होता है. फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था? सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे क्या होता था? माइनस हाफ. एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में एक फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, तो माइनस टू. तो ऑक्सीजन क्या हो जाता था? प्लस टू. So oxygen can be many things, beta. Minus two, minus one, minus half, and plus two also. Do you हम्म. remember? यस सर. Hello, dear. So this is what we have done.
Hmm. क्लियर? Yes, sir. ओ ये अभी अपने को क्या करने का था बेटा? देख बेटा, ये पूरा देख अक्रॉस, ये ग्रुप का दिया बेटा, ठीक है कि नहीं बेटा? Yeah. मैं ये मैंने पूरा सब सबका हम लोगों ने कर दिया बेटा, एवरीथिंग इज डन, सो दिस चैप्टर इज फिनितो मैन। Okay. हेलो डियर, इट इज फिनितो। Yes, sir. Okay. समझा के नहीं? Yes, sir. नाउ विच चैप्टर दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन योर स्कूल? This is it for term one. दिस इज इट, दैट्स इट? Do Yeah, they for give you term our one. worksheet something like that or no? Nothing like that. No, they don't give. Oh my God, so that's the case. Okay, anyways, so have you understood this, beta? Yeah. Okay, chalo then, bye bye. Thank you, sir. Bye.